हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम कर रहे हैं इंग्लिश 2018 का। इंग्लिश है लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है। इसमें पैडागोजी और जो पैसेज हैं, हम पैसेज के क्वेश्चंस देख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि पैसेज काफ़ी लॉन्ग है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसे रीड करें। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91 से 99 तक हमारे क्वेश्चंस हैं जो पैसेज से रिलेटेड हैं। 91 क्वेश्चन इज़, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी। आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है या फिर गूगल पे, तो आप उस पर कर सकते हैं मैच। 91 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द फ्रेज इंडियाज IT सेक्टर इज अंडरटेकिंग सम ग्लोबलाइजेशन ऑफ इट्स ओन। इसका सही आंसर है पर फॉर इंडियन IT फर्म्स आर एंगेजिंग इन एक्सपेंडिंग देयर प्रेजेंस इंटरनेशनली। 92 question is, which of the following factors made the services offered by the Indian IT attractive to the US? Indian IT companies had expertise in rare core operations. The US lacked the necessary infrastructure and personnel to handle mass call center operations. Inability of other equally cost efficient developing countries to comply with their strict policy. None, only A or B या ओनली सी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, नन, कोई भी नहीं। 93 क्वेश्चन इज, व्हाट हैज़ कॉज्ड इंडियन IT फर्म्स टू चेंज द वे दे कंडक्ट बिजनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज? द वॉल्यूम ऑफ वर्क बीइंग अवॉर्डेड कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय इंडियन फर्म्स. The demands of these markets are different from those of India's traditional customers. Wages demanded by local workers are far higher than what they pay their Indian employees. Stringent laws which are not conducive to outsourcing. इसका सही आंसर है, the demands of these markets are different from those of India's traditional customers. 94 question is, what do the NASSCOM statistics about Indian IT exports indicate? Drop in demand for IT services by Europe and the US. Indian IT firms charge exorbitantly for their services. India has lost out to other emerging IT hubs, or the Indian IT sector should undergo restructuring. इसका सही आंसर है, ड्रॉप इन डिमांड्स फॉर IT सर्विसेज बाय यूरोप एंड द US. 95 क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ difficulty that Indian IT firms will raise in emerging markets? Mindset resistant to outsourcing. Local IT services are equally cost effective. The US is their preferred outsourcing destination. Conflicts arising during the training of local talent. तो इसका सही आंसर है, the US is their preferred outsourcing destination. 96 is, which of the following is not true in the context of the passage? The recession severely impacted the US but not India. India is trying to depend less on the US as a source of growth. The future success of Indian IT firms depends on emerging markets. इसका सही आंसर है ओनली ए, ऑप्शन नंबर 2. 97 क्वेश्चन इज, which one of the following words is most similar in meaning to the word chasing as used in the passage? Running, harassing, pestering या pursuing. इसका सही आंसर है pursuing, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. चेसिंग का सिमिलर क्या है? pursuing. Which one of the following words most opposite to the meaning of the word undisputed are in use in the passage? Challenging, doubtful, deprived, emphasized. इसका सही आंसर है doubtful, ऑप्शन नंबर 2. 99 question is, other than crisis, what is driving IT companies to seek other options? The US makes more than 60% of India's export revenue. Emerging markets, none of the above, both 1 and 2. इसका सही आंसर है
emerging markets. Option number 2 is the right answer. 100 पे चलते हैं. 100 to 105 तक क्वेश्चंस दिए हैं पोइट्री के. ये पोएम दिए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे. ठीक है, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे चलते हैं. इन ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इस पोएम को भी आप ज़रूर से रीड करना, तभी आपको इसका समझ आएगा और तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे. लेकिन इतना टाइम नहीं होता. हमें मोटा मोटा आपको मैंने टेक्निक बताई है कि किस तरह से मैं पैसेज और गद्यांश को सॉल्व करना है, गद्यांश और पद्यांश को, तो वही ट्रिक हम यूज़ करेंगे. ब्रेकिंग इन ब्रेक ब्रेक ब्रेक, द सी पोइट्स हर्ट द वाइंड द सनशाइन थ्रू द क्लाउड्स. इसका सही आंसर है द सी. किसके बारे में है पैसेज? द सी के बारे में. क्वेश्चन में जाके देखते हैं. ब्रेक 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 ऑन दी थाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी. आ गया, फर्स्ट का रिप्लाई आपको मिल गया. चलिए 101 पे चलते हैं. 101 इज द मूड ऑफ द स्पीकर इन ब्रेक ब्रेक ब्रेक, कंटेम्पलेटिव, होपफुल, लाइट हार्टेड, सोम्बर एंड ग्रीव्ड या एनर्जाइज्ड. सोम्बर एंड ग्रीव्ड. 102 इज द स्पीकर इन द ब्रेक 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 ऑब्जर्व्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि नेगेटिव ढूंढना है, क्या छोड़कर. चिल्ड्रन प्लेइंग, ए सेलर बॉय सिंगिंग, ए लेडी इन ए टावर, शिप्स कमिंग इन. इसका सही आंसर है ए लेडी इन ए टावर. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. 103 इज द स्पीकर ऑफ ब्रेक 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 कैन नॉट फील, सी, स्पीक, हियर. इसका सही आंसर है स्पीक. वह कुछ नहीं बोलता है. In the first two lines of the poem, the poet uses simile, apostrophe, assonance, metaphor. इसका सही आंसर है apostrophe. जो शुरू की 2 लाइन है उसमें क्या यूज़ है आइए देखते हैं. apostrophe, ये देखिए, ब्रेक 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 और थाई स्टोन ऑन सी, ये वाला साइन जहाँ आ जाएगा ये होता है apostrophe. वहाँ पे कौन सी सिमिली होगी, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? एपोस्ट्रोफी. चलिए 105 हमारे हो गए. 106 पे चलते हैं. ये रह गया हमारा. 104 हुए हैं हमारे. 105 पे आ जाते हैं. द फ्रेज हैव हेवन अंडर द हील इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, मेटाफर, इलिस्ट्रेशन या पर्सनिफिकेशन. इसका सही आंसर है अलिट्रेशन. हेवन अंडर द हील. आइए देखते हैं. देखिए ये लाइन हेवन और अंडर द हील. अलिट्रेशन कहता है अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक ही वर्ड बार बार यूज़ होता है एच और एच, तो इसलिए हो गया अलिट्रेशन. चलिए अब चलते हैं. 106 to 120 हमारा क्या है? क्वेश्चंस दिए हैं पैडागोजी के. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन? एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी एंड कवरेज या फ्रीक्वेंसी. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एक्यूरेसी. 107 इज the phenomenon where a single word is associated with 2 or several related meanings to known as homonyms, homograph, polysemy या homonym. इसका सही आंसर है polysemy. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. जहाँ 2 और 2 से ज़्यादा रिलेटेड मीनिंग हो वो क्या होता है? polysemy. 108 is the dog lived in the garden but the cat who was smarter lived inside the house is an example of simple sentence, complex compound sentence, complex sentence या compound sentence. इसका सही आंसर है complex compound sentence. ऑप्शन नंबर 2 is the right answer. 109 is if a student of language is cramming his answers then he would not be able to. क्रैमिंग होता है रट्टे लगाना. अगर एक बच्चा भाषा के रट्टे लगा रहा है तो वह किस योग्य नहीं है. अटैम्प्ट क्वेश्चन आंसर्स, अटैम्प्ट वोकेबुलरी बेस्ड एक्सरसाइज, अटैम्प्ट स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस, अटैम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अटैम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग.
वह अपनी तरफ से कोई भी क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा। रट्टा लगाया उसने, जो पढ़ेगा वो ही लिखेगा, उसके अलावा किसी भी फील्ड में वो खुद से नहीं कर पाएगा कुछ भी। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग। 1010 110 is during reading, if a student is piecing information together as they read a text, keeping track of what is happening, she is inferring, skimming, paraphrasing या synthesizing। इसका ऑप्शन है 4 राइट आंसर, क्योंकि वह चीज़ों को जोड़कर देख रहा है। देखिए टुकड़े हैं चीज़ों के, पियर्सिंग इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा है। तो इकट्ठा करना, एकत्रित करना, संश्लेषण करना यानी जोड़ना। इसमें चीज़ों को हम जोड़कर देखते हैं सिंथेसिस में। ठीक है, इसका 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंटोनेशन, वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, टोन, रिदम, लाउडनेस। इसका सही आंसर है वॉइस एंड प्रोनाउंसिएशन। इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। 112 is are involved in thinking, image, language, imagination, language, concept and preposition। इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 113 is language laboratory is the place where the learners have to listen on headphone. The language labs are set up with a view to provide listening activities in order to develop analysis habit, speech habit, criticizing habit या listening activities। इसका सही आंसर है speech habit। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 114 is grammar translation method is basically used to teach grammar, foreign language, rules of any language, usage, classical language। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्लासिकल लैंग्वेज। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, क्लासिकल लैंग्वेज सिखाई जाती है। इसमें हमें ग्रामर का यूज करके चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। 115 is which one of the following can be used as rubric for the assessment of fluency, coherence of language, can express with some flexibility and appropriacy on a variety of topics, can initiate logically develop simple conversation on a familiar topic, is always comprehensible usage, appropriate intonation, demonstrates hesitations to find words or use correct grammatical structure। इसका सही आंसर है demonstrates hesitations to find words or use correct grammatical structures। 116 is one of the not following objective defined by NCF 2005 on teaching English at upper primary level। इसका सही आंसर है to promote learners conceptual of printed text in terms of heading, paragraphs or horizontal lines। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 117 देखते हैं। 117 is if you are listening to the description of how to reach a specific location, then you are doing casual listening, focus listening, intensive listening या extensive listening। इसका सही आंसर है intensive। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 118 is if a language teacher has put the words school, teacher, headmaster, peon in a group, then she is following lexical grouping, semantic grouping, phonetic grouping या grammatical grouping। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 semantic grouping। 119 is at the initial stages of language learning dash may be one of the languages for learning activities that create the child awareness to the world। NCF 2005। English vernacular language, सेकेंड लैंग्वेज क्या, हिंदी। इसका सही आंसर है इंग्लिश। ऑप्शन नंबर 1।
आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इज डैश मेथड, ऑडियो लिंगुअल, ग्रामर ट्रांसलेशन या CLT या SLT। इसका सही आंसर है ग्रामर ट्रांसलेशन। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी चैनल को, आगे ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।